1 year Bible reading plan. Mark 6 chapter 1 to 29 verse. लेविटिकस 24 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 वचन से 29 वचन तक और लेवीय व्यवस्था 24 अध्याय। इंग्लिश में हम किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Mark 6 chapter 1 to 29 verse. Introduction. Christ contemned by his own countrymen. John the Baptist's death, the miracle of the loaves and fishes, etc. First verse से पढ़ेंगे. And he went out from thence and came into his own country, and his disciples follow him. And when the Sabbath day was come, he began to teach in the synagogue. And many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? And what wisdom is this which is given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph, and of Judah and Simon? And are not his sisters here with us? And they were offended at him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, but in his own country, and among his own kin, and in his own house. And he could there do no mighty work, save that he laid his hands upon a few sick folk and healed them. And he marveled because of their unbelief, and he went round about the villages teaching. And he called unto him the 12, and began to send them forth by 2 and 2, and gave them power over unclean spirits, and commanded them that they should take nothing for their journey, save a staff only, no scrip, no bread, no money in their purse, but be shod with sandals, and not put on 2 coats. And he said unto them, In what place soever ye enter into an house, there abide till ye depart from that place. And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. And they went out and preached that men should repent. And they cast out many devils, and anointed with oil many that were sick, and healed them. And King Herod heard of him, for his name was spread abroad. And he said that John the Baptist was risen from the dead, and therefore mighty works do shew forth themselves in him. Others said that it is Elias, and others said that it is a prophet, or as one of the prophets. But when Herod heard thereof, he said, It is a John, whom I beheaded. He is risen from the dead. From Herod himself had sent forth and laid hold upon John, and bound him in prison for Herodias' sake, his brother Philip's wife, for he had married her.
For John had said unto Herod, It is not lawful for thee to have thy brother's wife. Therefore Herodias had a quarrel against him, and would have killed him, but she could not. For Herod feared John, knowing that he was a just man and an holy, and observed him. And when he heard him, he did many things, and heard him gladly. And when a convenient day was come, that Herod on his birthday made a supper to his lords, high captains, and chief estates of Galilee. And when the daughter of the said Herodias came in, and danced and pleased Herod and them that sat with him, the king said unto the damsel, Ask of me whatsoever thou wilt, and I will give it thee. And he sware unto her, Whatsoever thou shalt ask of me, I will give it thee unto the half of my kingdom. And she went forth and said unto her mother, What shall I ask? And she said, The head of John the Baptist. And she came in straightway with haste unto the king, and asked, saying, I will that thou give me by and by in a charger the head of John the Baptist. And the king was exceeding sorry, yet for his oath's sake and for their sakes which sat with him, he would not reject her. And immediately the king sent an executioner, and commanded his head to be brought, and he went and beheaded him in the prison, and brought his head in a charger, and gave it to the damsel, and the damsel gave it to her mother. And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb. And the apostles gathered themselves. And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse and laid it in a tomb. 29 वर्ष तक पढ़ना था. मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से 29 वचन तक. नासरत में यीशु का अनादर. वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए. सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई. यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता. वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया. और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा. 12 प्रेरितों का भेजा जाना. 7 वचन से आगे. उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा, और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया. उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो, और 2-2 कुर्ते न पहनो. और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहाँ से विदा न हो, तब तक उसी घर में ठहरे रहो. जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो. तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकालना, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या. 14 वचन से आगे.
हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापति और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यहोवा के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। लेविटिकस 24 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। द ऑयल फॉर द लैम्प्स, the shewbread, the Shelomit's son blasphemeth of murder, the blasphemer stoned. First verse say, and the Lord spake unto Moses, saying, command the children of Israel that they bring unto thee pure oil, olive beaten for the light, to cause the lamps to burn continually, without the veil of the testimony of in the tabernacle of the congregation shall Aaron order it from the evening unto the morning before the Lord continually. It shall be a statute forever in your generations. He shall order the lamps upon the pure candlestick before the Lord continually, and thou shalt take fine flour and bake 12 cakes thereof. 2/10 deals shall be 1 cake, and thou shalt set them in 2 rows, 6 on a row upon the pure table before the Lord. And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the Lord. Every Sabbath he shall set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. And it shall be Aaron's and his sons, and they shall eat it in the holy place, for it is most holy unto him. Of the offerings of the Lord made by fire,
by a perpetual statute, and the son of an Israelitish woman, whose father was an Egyptian, went out among the children of Israel, and this son of the Israelitish woman and a man of Israel strove together in the camp. And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. And they brought him unto Moses, and his mother's name was Shalomith, the daughter of Dibri of the tribe of Dan. And they put him in ward that the mind of the Lord might be shewed them. And the Lord spake unto Moses, saying, Bring forth him that hath cursed without the camp, and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin, and he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well the stranger as he that is born in the land. When he blasphemeth the name of the Lord shall be put to death, and he that killeth any man shall surely be put to death, and he that killeth a beast shall make it good beast for beast. And if a man cause a blemish in his neighbor, as he hath done, so shall it be done to him. Breach for breach, eye for eye, tooth for tooth. As he hath caused a blemish in a man, so shall it be done to him again. And he that killeth a beast, he shall restore it, and he that killeth a man, he shall be put to death. Ye shall have one manner of law, as well for the stranger as for one of your own country, for I am the Lord your God. And Moses spake to the children of Israel, that they should bring forth him that had cursed out of the camp, and stone him with stones. And the children of Israel did as the Lord commanded Moses. लैव्य व्यवस्था 24 अध्याय पहले वचन से। पवित्र दीपकों को सजाना। पहले वचन से, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। भेंट की रोटियाँ, तो मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना, कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वह हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। ईश्वर निंदा का दंड। 10 वचन से आगे, उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा, जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच चला गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और वह एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें, और तो इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। 17 वचन से आगे, फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी के बदले प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने के बदले अंग भंग किया जाए, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसी ही उसको भी पहुंचाई जाए। पशु को मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य को मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अतः मूसा ने इस्राएलियों को यह समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 17 चैप्टर 1 to 13th वर्स, एक्सोडस 4th चैप्टर। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 से 13 वचन, और निर्गमन की पुस्तक 4था अध्याय। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान को हम अपने व्यक्तिगत समय में अकेले में बैठकर पढ़ना है। इसमें से जब परमेश्वर हमारे हृदय की गहरी बात को छूकर अगर कुछ कहता है या हमें कुछ अवस्थाओं को सिखाता है या बताता है कुछ ऐसे मार्गदर्शन, तो हमने उन सब बातों को एक नोट्स बनाकर लिख कर रखना है और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल देना है, बदल देना है। और उस तरह से जब हम 2 साल का बाइबल रीडिंग कंप्लीट कर रहे होंगे, पूरा समय हो रहा होगा, तो उस समय हम देखेंगे अपना एक अलग व्यक्ति हम प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर के वचन से ढला गया हो। और परमेश्वर ऐसे इंसान जो परमेश्वर के वचन से ढला गया व्यक्ति बना हो, वह परमेश्वर के काम में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा और बढ़िया तरीके से हम परमेश्वर की गवाही बन सकेंगे। हम अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं और हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमने इसे करना है और लाभ उठाना है परमेश्वर के आनंद का। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।